Hello everyone, myself Anish Kaur from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and from this video lecture we are going to discuss about the reproductive system of human being. Let us discuss the male reproductive system. Male reproductive system. And the male reproductive system can be classified or categorized into different organs. As the system or organ system consists of a number of organs, so under the male reproductive system we will observe different reproductive organs. So male reproductive system consists of primary sex organ, and the primary sex organ of male reproductive system is the one pair testes. Okay, one pair testes is present in male reproductive system as the male reproductive organ, primary sex organ, and the testis is responsible for स्पर्मेटोजेनेसिस. टेस्टिस ही वो प्लेस होता है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन. Okay, sperm formation process is also known as spermatogenesis, and the place of spermatogenesis it is inside the testis. Testis के अंदर ही वो प्लेस होता है. Second function of testis, it is the secretion, release of male hormone which is known as testosterone. Testosterone which is the male reproductive hormone. ये दो जो है मेन फंक्शन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का. पहला जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. द सेकंड इज द रिलीज ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. तो इन दोनों के लिए जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द टेस्टिस, इसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उसी के अंदर स्पर्म बनता है और ट्यूब्यूल के बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं लेडिक सेल. तो ये जो है लेडिक सेल क्या करता है, वही टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जिसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे. यहाँ पे बस इतना जानेंगे दैट द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इट इज to produce sperm as well as synthesize and release the testosterone. Okay, and the secondary sex organ. तो secondary sex organs consist of, ये कौन कौन सा पार्ट जो है इसमें पाया जाता है. Under the secondary sex organ we will observe ducts or tubule. Okay, ducts or tubule. And the second group we will observe some glands. Ducts and tubules along with the glands make the secondary sex organ. Okay, so ducts and tubules में आप जो है पढ़ेंगे about जस्ट आफ्टर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस के अंदर पाया जाता है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो रेटे टेस्टिस में ओपन होता है. रेटे टेस्टिस, सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट होकर एक कॉमन ब्रांच ऑफ ट्यूब्स में ओपन होते हैं, उसको हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं. देन रेटे टेस्टिस ओपन इन अनदर कॉमन ट्यूब, इट इज नोन एज vas efferentia. And vas efferentia open into duct along with the testes, which is present along with the testes, parallel to testes. और ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है. और स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द एपिडिडाइमिस. Okay, then epididymis collect the sperm from the testes and store
until they used during the copulation. ओके, जब तक कॉपुलेशन नहीं होता है तब तक वो स्टोर करके रखते हैं. एंड देन epididymis open into a long tube which is responsible to transfer the sperm from the epididymis to the ejaculatory duct. During the ejaculation, the epididymis, from the epididymis, the sperm transferred to ejaculatory duct by the help of vas deferens. Okay, vas deferens, and then from the vas deferens it is transferred to the next group of duct. It is the ejaculatory duct. Then after ejaculatory duct, the ejaculatory duct ejaculate the semen through the urinogenital duct. Urinogenital duct. Urinogenital duct, which is present inside the male accessory or male एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज पेनिस. पेनिस के लॉन्ग जो है ये पाया जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट, उसी से इजाकुलेशन होता है. ओके, इसी से ये बाहर निकलता है. और ये जो है अगला एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको बोला जाता है. ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज द ग्लैंड. सो देयर आर अ नंबर ऑफ ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट in the reproductive system of male reproductive system. So the first gland which we discuss called the seminal vesicle. Seminal vesicle. Okay, it is open in the ejaculatory duct. Then seminal vesicle. Then the second gland, it is the prostate gland. Prostate gland. Okay, and the third or last gland is the Cowper's gland. It is also known as bulbourethral gland. Cowper's gland को हम अदर वर्ड में bulbourethral gland भी बोलते हैं. ओके, अगला जो है देखते हैं. सो ये जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में आता है. एंड द लास्ट डक्ट, दैट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट, रन्स थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट इज द पेनिस इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट, इस सभी पार्ट्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. So let us draw a diagram to represent different parts of male reproductive system. So first of all, the male reproductive system, we have to represent the main organ of male reproductive system, and it is known as the testes. So there is a pair of testes present in male reproductive system. Okay, and this testis is present in a sac-like structure which is known as scrotal sac. यहाँ पे जो है डायग्राम को फ्रंटल व्यू दिखाने के लिए सेपरेट करके रखा गया, बट एक्चुअली में जो टेस्टिस होता है या स्क्रोटल सैक होता है वह आपका जॉइंटेड फॉर्म में पाया जाता है. तो इस तरह से आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जॉइंट फॉर्म में रहता है. बस यहाँ पे सेपरेट हम दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे पेनिस को भी रिप्रेजेंट करना है. तो इनसाइड द स्क्रोटम अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे जो है टेस्टिस प्रेजेंट होगा. देन along the testis, ये आपका है scrotal sac, and inside the scrotal sac
टेस्टिज इज प्रेजेंट, उसी के अंदर जो है टेस्टिज प्रेजेंट होता है। एंड अलोंग विद द टेस्टिज इन स्क्रोटल साइड देयर इज अ डक्ट प्रेजेंट, और इस डक्ट को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? ये स्पर्म को स्टोर करता है। ये आपका टेस्टिज, दिस इज द टेस्टिज। So after formation of sperm in the testis, it is released into the epididymis through the vas efferentia, and a tube arises from the epididymis. Okay, a tube or duct comes from the epididymis, and this tube or duct is known as the vas efferens. ट्यूब को हम बोलेंगे vas efferens. And this tube make a loop around the ureter. Okay, this tube make a loop around the ureter. ureter जो कि यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, तो उसी यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर आता है, उसी के ऊपर ही लूप बनाते हैं। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। So due to the association of urinary system with the reproductive system of male, the male reproductive system is also known as urinogenital system. Male reproductive system को हम अदर वर्ड में urinogenital system भी बोलते हैं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम जो है वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अटैच्ड रहता है। यूरिन और सीमेन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो है वैस डिफरेंस यहाँ तक पहुँचा, एंड देन वैस डिफरेंस से एक डक्ट जो है आकर के कनेक्ट होता है, एंड दैट डक्ट ओपन, एंड दैट डक्ट comes from a gland. This comes from a gland, and this gland is known as the seminal vesicle. Gland को हम बोलते हैं seminal vesicle. ये दोनों साइड से आपको दिखाई देगा, इस साइड से भी जो डक्ट आएगा उसमें भी ये सेमाइनल वेसिकल ओपन होता है। इन सेमाइनल वेसिकल जो है इट इज वन पेयर ही सेमाइनल वेसिकल पाया जाता है। ओके, और जो डक्ट है ये आपका वैस डिफरेंस ये भी जो है वन पेयर पाया जाता है, पेयर भी है। देन व्हेन द सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू द वैस डिफरेंस, द डक्ट इज नोन एज इजाकुलेटरी डक्ट। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, एंड दिस इजाकुलेटरी डक्ट ejaculate the sperm along with the fluid of seminal vesicle. Seminal vesicle से जो फ्लूइड, जो लिक्विड सब्सटेंस निकलता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो ये फ्लूइड जब मिक्स हो जाता है स्पर्म से तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, और वो किसे ट्रांसफर होता है? इजाकुलेटरी डक्ट से। ejaculatory duct, and ejaculatory duct join with the urethra, join with the urethra, यूरेट्रा से ज्वाइन हो जाता है। यूरेटर आपका यहाँ पे, ये है आपका यूरेटर। ओके, दोनों साइड से यूरेटर आएगा, लेफ्ट किडनी से भी और राइट किडनी से भी। तो यूरेटर ओपन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जो है ओपन होता है डक्ट से, यूरेट्रा उसको बोलते हैं। एंड यूरेट्रा अगेन ज्वाइन विद द इजाकुलेटरी डक्ट एंड ओपन और मेक अ कॉमन डक्ट व्हिच इज नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट।
when urethra join with the ejaculatory duct make a common duct or common passage, common means for urine as well as for semen. That duct, common duct, is known as urinogenital duct. Okay, and before the urinogenital duct means at the place of the joining of urethra with ejaculatory duct, there is another gland. There is another gland present, and this gland is found around this connection. It is known as prostate gland. Prostate gland. इसको हम बोलेंगे prostate gland. Then the urinary duct opens outside the body through an opening which is present in a muscular organ which is known as muscular organ, and this muscular organ is known as the penis. And the opening of urinogenital duct through the penis, it is known as urethral meatus. यूरेथ्रल मीटर्स, यूरेथ्रल मीटर्स से जो है यूरिन और उसके अलावा जो है इसी से सीमेन कब बनता है? जब स्पर्म यहाँ से स्पर्म की ओर ट्रांसफर होता है, जिससे वैस डिफरेंस से जब ये वैस डिफरेंस कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, तो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल से क्या निकलता है? सेमाइनल फ्लूइड निकलता है। तो ये सेमाइनल फ्लूइड जब स्पर्म से मिक्स हो जाता है अलॉन्ग विद द फ्लूइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड वाला भी फ्लूइड मिक्स हो जाता है, तो इस पूरे मिक्सचर को हम बोलते हैं सीमेन। और सीमेन जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू बाहर आता है अलॉन्ग द पेनिस एंड रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू यूरेथ्रल मीटर्स। ओके, और यहाँ पे जो है एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द पेनिस, पेनिस के टर्मिनल पार्ट पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये स्वेलिंग होता है, एक्स्ट्रा स्वेलिंग, एंड दैट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। इसी को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस इज मेड अप ऑफ अ सेंसिटिव लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, जो सेल्स को फील कराता है। देन द थर्ड ग्लैंड विच इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड के बारे में भी आपको बताएगा कि ये भी एक पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो काउपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट अराउंड और adjacent to the urinogenital duct at the base of penis। पेनिस का जो बेस होता है, यहाँ पे बेस है, तो इसी बेस पर जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट के दोनों तरफ साइड में जो है वन पेयर, ये क्या होता है? वन पेयर होता है, वन पेयर होता है, ये जो है सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगा और सेमाइनल वेसिकल एंड काउपर्स ग्लैंड पेयर्ड होते हैं। तो ये पेयर्ड ग्लैंड पाया जाता है और इसी पेयर्ड ग्लैंड को हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक, दिस इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड। और इट इज आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड द बल्बो सेक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड टेक प्लेस जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन से पहले, इजाकुलेशन का मीन्स क्या हुआ? जब यहाँ से स्पर्म और ये सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से मिक्स होकर के सीमेन रिलीज होता है। तो सीमेन के बारे में आपको बताया कि सीमेन इज व्हाट? सीमेन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। The fluid comes from seminal vesicle and the prostate gland. It is combinedly known as seminal plasma। तो seminal plasma जब स्पर्म से मिक्स हो जाता है, जो कि यहाँ से आ रहा है, वैस डिफरेंस से होते हुए आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। ओके, सो जस्ट सीमेन जब निकलता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड इजाकुलेशन। So just before ejaculation or at the initial point of copulation, the Cowper's gland release some mucus substance for lubrication। ये जो है lubrication के लिए रिलीज करता है। Okay, so this is all about
The main reproductive system of human being.